अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादबाग में हुई कत्ल की अनोखी वारदात। एक सहेली ने दूसरी सहेली को कराची से लाहौर लाकर अपने आशना की मदद से मौत के घाट उतार दिया। उसके पीछे वजूहात हैं क्या, पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, शादबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ऐसे खतरनाक कातिल को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी महबूबा के साथ मिलकर उसकी सहेली को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा, उसे कत्ल किया, गले में फंदा डाला, ईंटों के सर पे बेदर्दी के साथ वार किए गए, उसकी शनाख्त मशक करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ इसने क्यों किया, किस तरह किया, ये इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी, की ना है मोहम्मद काशिफ। कितने रहना है काशिफ? मैं इतने शादबाग दे एरिया पंबे चुकी पंबे चुकी है, शादबाग ही रहना है। हाँ जी। सही है। कितनी उम्र है तेरी? मेरी 21 साल होगी। 21 साल। की करना है? मैं फूड पांडा डिलीवरी कर। इश्क कदों होया शादीशुदा औरत नाल? मतलब कि अज तो 7 महीने पहले मैं ईमो यूज़ करते सां। अच्छा। तो ईमो के उत्ते मेरे नाल जिहड़ी गिरफ्तार ने बीवी, उन्हां दे नाल मतलब कि गलबात हुई मेरी ईमो के उत्ते ही। वाइस क्लब मतलब फेस टू फेस नहीं होंदी। कितने साल पहले? 8 महीने पहले। 8 महीने पहले? 8 तो 9 महीने हो गए ने। अच्छा, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬੀਨ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਲਫਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਫਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਿ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਉਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਣ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਸੀਵੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਆਏ ਆ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੱਲੀ ਆਈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? 1 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 4.5 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਵਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀਗਾ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਉਲਫਤ ਬੀਬੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਬੀਨ ਲਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਬੀਨ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਬੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਢਾਇਆ, ਡਾਟਾ ਕਢਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 3 ਕੁ ਸਿਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆਣੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਫਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬੀਰ ਨੇ ਉਲਫਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਲਫਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਲਫਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਲਫਤ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਗੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ। ਉਲਫਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 18 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ? ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੀਕਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਏਗੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਉਲਫਤ ਬੀਬੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਲਫਤ ਤੇ ਸਹਿਰ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ। ਜੀ। ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਬੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 30 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਲਫਤ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫਾਂਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਬਰਗ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 4:30 ਵਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
9-10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਉਲਫਤ ਕੇ- ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਲਫਤ ਅੱਛਾ, ਨੂੰ। ਫਿਰ? ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਤਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਬੀਨ ਸਬੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ ਨਾ, ਕੋ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਗਈ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਲਫਤ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਗਏ। ਆਪ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਉਤਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਤਰ ਮੈਂ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਲੈਣ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਰੱਸੀ ਲਈ ਗਲੇ ਮੈਂ- ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਖੋਖਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ। ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਲਈ ਉਧਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਚੱਲੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਈਏ ਤੂੰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀਗਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ? ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਇਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਲਫਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਸੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਰੱਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਚੀਕਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ? ਮਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ। ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਫਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ? ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਲਫਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ? ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੱਧ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ? ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੀਖਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो ख़तरनाक मुलज़मा मौजूद है जिसने अपनी सहेली को अपने आशिना की मदद से बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसे गले में फंदा दिया गया, उसके सर पे और मुंह पर ईंटें मारकर उसका चेहरा मसक कर दिया गया। फिर उसको कत्ल करने के बाद अपने आशिना के साथ वक्त गुजारा और उसके बाद कराची अपने घर रवाना हो गई। और फिर पुलिस ने इसे 2 माह की तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ इसने क्यों किया? ये शादीशुदा खातून है और 4 बच्चों की माँ भी है, और उसके बावजूद इसने इश्क किया, अपनी ही सहेली को कत्ल किया। इसकी वजूहात क्या है, इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? उल्फत। कहाँ पे रहती है उल्फत? कराची। कराची किस जगह? कराची औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में? कब से रह रही हो? 4 साल। कितनी उम्र है? 26-27 साल होगी। 26-27 साल? पिछली बार तो 36 साल थी, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, 36-37 सॉरी। अच्छा, 36-37 साल, ठीक है। और बच्चे कितने? 4। 4 बच्चे हैं। कितनी उम्र है बड़े बेटे की? 16 साल। 16 साल। शादीशुदा खातून हो? जी बिल्कुल। साथ क्या करती हो? कुछ नहीं। काम शाम करती हो कोई? वर्किंग लेडी हो? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हो सिर्फ? जी। कहाँ से मिली ये सबीन सहेली? टिकटॉक से। टिकटॉक से? कैसे? टिकटॉक से फ्रेंडशिप हुई हमारी। कब हुई?
कैसे हुई? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले। अच्छा, जी मैसेज वगैरह किया उसने? जी जी। क्या किया? हेलो हाय। अच्छा, हेलो हाय हो गई। जी फिर क्या हुआ आगे? फिर बस नंबर का लेन देन हुआ और दुआ सलाम हो गई। अच्छा, दुआ सलाम हो गई, सहेली बना लिया फिर उससे? जी अच्छा, ठीक है। फिर आगे? बस फिर आगे मिलना मिलाना हो गया। मिलती रही है उससे। जी ये जो आशिक है तुम्हारा, जिसके साथ मिलके अपनी सहेली को कत्ल किया है, ये कहाँ से मिला? सहेली कैसे मिली? वो तो टिकटॉक से मिल गई, ये कहाँ से मिला? आशिक ये कहाँ से मेरी मिला? सहेली के जरिए मिला। सहेली के जरिए मिला। उसका क्या है, कजन है? उसका फ्रेंड था। फ्रेंड था। तो क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि अच्छा लड़के ऐसे दुआ सलाम करो, बातचीत करो। इमो पे बातचीत हुई फिर। अच्छा, इमो पे तो होती रही। इसने सभी ने मेरा नंबर उसको दिया। अच्छा, इसने फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की। हाँ, इस तरह फिर हमारी बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू हो गई। क्या कहता वो? ये तुमने क्या कहा? अच्छा लगता था तुम्हें? कुछ नहीं, हाँ। बस ठीक है, फ्रेंड था अच्छा। अच्छा, बस ठीक ही लगता था, जी। इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। बस ज्यादा सही है। अच्छा कौन लगता है? ज़्यादा अच्छे मुझे अपने बच्चे लगते हैं। बच्चे लगते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक गैर मर्द के साथ अपने बच्चों की उम्र से कोई 4-5 साल बड़ा 21 साल का लड़का अपना दोस्त बना लिया। जी दोस्त था। प्यार हो गया फिर? नहीं, प्यार शायद नहीं। प्यार शेयर नहीं हुआ? मिलने आया वो तुम्हें कराची में? हाँ जी, मिलने आया था। अच्छा, कैसे मिलने आया था? मिलने आया था, सीवी पे मिले थे हम लोग। अच्छा, फिर वो चला गया था शाम को। चला गया। फिर तुम मिलने आई उसे? जी फिर मैं आई थी, उसकी फैमिली से मिली हूँ, उसके बहन भाइयों से मिली हूँ। क्या कहा उसे? कुछ भी नहीं कहा। उन्हें नहीं बताया कि शादीशुदा हो तुम? वो तो तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रहे थे इसकी। नहीं, हाँ। हम सबको पता है शादीशुदा है। अच्छा। शादी के ख्वाब नहीं देख रहे थे। अच्छा, तो अपने शौहर और बच्चों को छोड़ के आ गई? नहीं, क्यों छोड़ के आ गई? छोड़ के ही आई ना यहाँ पे मिलने उससे? मैं तो एक दिन की लाई थी, फिर चली गई थी। उनको बता के आई थी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ? नहीं, हाँ, क्या बता के आई थी? मैं बहन के घर पे हूँ। कराची से लेके आई थी। हाँ। मेरी ये गलती थी। अच्छा, जी, गलती क्या थी? कि कराची से मैं उसको साथ लाई थी। वो बाद में लेके आते हैं। फिर इस आशिक की जो एंट्री हुई तुम्हारे साथ, ये क्या नाम है इसका? काशिफ। काशिफ। काशिफ से कितनी मुलाकातें हुई? 2 ही। एक कराची बुलाया और एक उसके घर आई, जी बस? जी। इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं? नहीं, तो जब कत्ल किया उस दिन कौन था उसके साथ, काशिफ के साथ? ये तो आप पहले का पूछ रहे हैं ना। नहीं, पहले का नहीं, टोटल मुलाकातें पूछ रहा हूँ 3 तुम्हारी। हुई हैं टोटल। हाँ। तीसरी बार फिर सबीन के साथ मिली हूँ। कोई वीडियो भी लीक हुई है तुम्हारी, कोई बुरहाना सी, वो नहीं। कोई जिससे लड़ाई? काशिफ ने सारी तफसील बताई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि जिस वजह से नहीं, मामला बना, नहीं कोई सर, नहीं, तस्वीरें, ये सब वो झूठ है। इसकी फैमिली की तस्वीरें लगा देती इसकी थी। जी जी, वो सबीन वो ने की थी। तुमने ली हुई थी तस्वीरें इसके नहीं, घर में मैंने नहीं जाके? ली थी। ये काशिफ का बयान है? नहीं, मैंने कोई तस्वीरें नहीं ली थी। वो तस्वीरें ये मुझे कह रहा है कि मेरी तस्वीरें लीक की है सबीन ने, लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, ना इल्म है। इन दोनों का आपस में झगड़ा था, किस बिना पे था ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। वो कहती ये अभी मुझे थी काशिफ कि ने- उल्फत को मिलो ना। काशिफ को बुलाऊं? जी बुला लें। वो तुम्हारे सामने अगर ये बात कहेगा तो फिर? सर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो काशिफ से उसका ये झगड़ा नहीं था। वो कहता है कि यही है कि वो कहता है वो तो बंदे को नहीं पसंद करती थी तुम्हारे शौहर को, कि वो उससे भी ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। बिल्कुल ऐसे ही बात है। जी, तो ऐसे। फिर वो ठीक तो कह रहा है, फिर नहीं, कैसे कह रहे हो? लेकिन इनके आपस में लड़ाई थी सर, वो मेरी वजह से नहीं थी। इनकी लड़ाई ये थी कि वो उसको हेट करती थी, गालियाँ देती थी, इसकी तस्वीरें डीपी पे लगा के घूमती थी। तो तुम्हारी वजह से ही लड़ाई थी नहीं ना? नहीं, ये इमो पे ग्रुप था हमारा, ग्रुप में ये करती थी। अच्छा। मेरी वजह से नहीं था, आपस में लड़ाई झगड़ा था ग्रुपों में, जैसे और दोस्त हो तुमने जाते। प्लानिंग बनाई उसके कत्ल की 2.5-3 महीने पहले का, इसे फोन करके कि उसे कत्ल करना है। ये काशिफ बयान दे रहा है, ये सब कुछ पुलिस भी यही कह रही है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे सर, मैं नहीं कह रही कि झूठ बोल रहे हैं। तो फिर? मैं देखिए, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। मेरी दोस्त थी, मैं उससे दिन में 1000 दफ़ा लड़ती थी। हाँ, ठीक है, मैं तो उसे 1000 दफ़ा कहती थी कि तुम मेरे हाथों से मर जाओगी। कहती थी तुम जी। मर जाओगी? सही है। मैं कहती थी कि सुधर जाओ, नहीं करो, इस तरह नहीं करो। हाँ। मैं सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो उसका मतलब रोज़ का आना जाना, मैं अगर व्हाट्सएप से उसको ब्लॉक करती थी या फ़ोन बंद कर देती थी, वो फ़ौरन बाइक पे बैठ के मेरे घर आ जाती थी। तंग किया हुआ था, जिंदगी अजाब कर दी तुम्हारी उसे? जी बस ऐसे ही था। और तो- मेरे ज़्यादातर वो उठा के ले जाती थी अच्छा, कि तो मैं तुम्हारी बच्ची नहीं दूंगी। बच्ची नहीं दूंगी? फिर मैं इसके पीछे भागती थी, फिर जाके इसके घर से बच्ची लेके आती थी। अच्छा, जी, तो बस वो ज़हनी टॉर्चर किया हुआ था। ज़हनी टॉर्चर किया था। फिर प्लानिंग की कत्ल की इसके?
प्लानिंग तो सर मैं रोज़ाना बोलती थी कि मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं, वो प्लानिंग असल वाला जो कत्ल की है वो वाली प्लानिंग बताओ। रोजाना सर बोलती थी उस टाइम पे हम लोग घूमने फिरने आए थे। काशिफ से मैंने कई बार बोला था क्या कि मेरी इससे जान छुड़ाओ। इसे मार दो ना, काशिफ को यही कहा था ना, कई दफ़ा बोला। कई दफा बोला नहीं उसको। वो कहता है मुझे बकायदा तौर पे मैंने जान छुड़ाई है, उल्फत ने मुझे कहा है कि इसे मारो। एक बार तो ऐसे हुआ कि वो लेके आ गई तो वापस चले गए हैं। नहीं इस तरह से भी नहीं हुआ। सर, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा। जो सच है मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो बोलो ना, सच बोलो। तो यही कह रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। जब मैं और सबिन दोनों आए थे, हम लोग घूमने फिरने आए थे सर। मैं पहले भी ये मुझे लेके सखर गई थी बहनों की तरफ, वहाँ भी मैं इसके साथ वो गई। घूमने फिरने आ जाती थी। शौहर जो तो तुम्हारा है वो नहीं कहता था किधर चली जाती हो ये वो औरत सबीन को पूछ के लेके? लाई थी ना, सबीन लेके आई थी। सबीन उसकी क्या लगती? फुफीजाद बेटी? मेरी बहन दोस्त है? थी ना, हाँ, मेरी दोस्त थी, इस वजह से। अच्छा। तो तो दोस्त सबीन ने बोला कि हम लोग दोस्त और तुम्हारी उम्र में कितना फर्क है? बड़ी है मुझसे का। बड़ी थी? जी। अच्छा, तो वो दोस्त जो तुम्हारी बच्ची उठा के ले जाती है, तुम्हारे घर में आके गालियां निकालती है, वो दोस्त के साथ तुम्हारा बंदा वो पागल है, बच्चों को मारती है, वो आपके शौहर को नहीं पता वो सारी बातें जो कराची में हो रही हैं? सब पता है। तो फिर वो इजाजत दे देता है कि इसे लेके दूसरे पूरे शहर महल्ले में को चले पता जाओ। है, लेकिन वो फिर मिन्नतें करती थी, बाबर भाई जाने दें, खैर है कोई बात नहीं, हम दोनों लड़ते हैं, दिन में 10 दफ़ा लड़ते हैं, 10 दफ़ा फिर एक जगह होते हैं। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। फिर इसे कैसे काशिफ को क्या कहा कि इसे मार दो? सर ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कई दफ़ा बोला था। वो तो कई दफा बोला था। ये वाले कत्ल की बात बताओ ना। इसमें जब प्लानिंग करके लेके आए, गुलबर्ग में होटल करवाया, यहाँ से दाता दरबार आई, दाता दरबार से रिक्शे में बैठ के मौके पर गए, बिल्कुल। रिक्शे से उतरी, वहां पे जाके उसको उसने गले में फंदा दिया, तुमने ईंटें मारी, वो सारा वकूआ मैंने बताना ईंटें है। नहीं मारी, मेरा खुदा जानता है। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उसको ईंटें मारूंगी सर। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये इसको उस टाइम पे मार देगा। मुझे उसने यही बोला था कि मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, और मुझे इसके घर का ही पता था। मैंने यही बोला था, मैंने कहा सबीन जी इसके घर का रास्ता नहीं है। वो जो बंदा उसकी फैमिली को इस तरह से करती है, तुमने बताया, उसकी तस्वीरें लगाती है ईमो पे, और उसी के घर में तुम लेके जा रही हो उसे। जी, वो उसके- किस बेआफ पे लेके वो जा उसके रही हो? अब्बू उससे मिलना चाहती थी कि ये मुझे गालियाँ देता है, इसको समझाओ। वो दाता दरबार पे भी उसको लड़ने लगी थी। मतलब काशिफ गलत आदमी था या है वो जो मुलजिम है तुम्हारे साथ? मैं किसी को गलत नहीं कह सकती। मेरे क्यों नहीं कह सकती? कहना तो है। यहाँ तो वैसे सहेली कत्ल हुई, एक तरफ तो हो ना, दोनों की तरफ कैसे हो सकती हो? किसी को गलत क्यों नहीं कह सकती? तुम तो पाकीज़ा हो। नहीं, मैंने नहीं बोला मैं पाकीज़ा, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे गलती हुई। ताल्लुकात नहीं थे आपके नाजायज काशिफ के साथ? नहीं नहीं, 2 दफ़ा तो सर मुझसे मिली हूँ, नाजायज़ तलकात कैसे हो गए? भाई बनाया हुआ था? सगा भाई था वो भाई तुम्हारा? तो नहीं था, दोस्त था। तो दोस्त क्या होता है? दोस्त क्या होता है? फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है? क्या करता है फ्रेंड? फ्रेंड हेलो आई थी, अच्छी बातचीत थी, दुआ सलाम थी, मिलना मिलाना था। हाँ, मिलना मिलाना, उसके घर आ जाना, उसे कराची बुला लेना, ये कौन सा मिलना मिलाना है? उसके साथ रहना, घूमना फिरना, ये कौन सा मिलना मिलाना होता है? सर घूमने फिरी तो मैं नहीं हूँ, हाँ, बस वही जो गए हैं हम लोग तो दाता दरबार के यहाँ। बस अकेली नहीं आई तुम पहले उससे मिलने लाहौर आई उसके थी, घर में? आई थी उसके तो घर, रही नहीं उसके साथ? रही हूँ। हाँ, तो फिर? उसकी बहनों ने मुझे बुलाया था, उनसे मिलने आई थी मैं। हाँ, बहनें भी टिकटॉक पे आती हैं उसकी। वो तो कहता है हमारी फैमिली बड़ी दीनी है, कभी निकले भी नहीं है। तुम तस्वीरें नहीं। ले गई हो जब वो बाहर उसकी गया। बहन नहीं, मैंने तस्वीरें नहीं ली, झूठ बोल रहा है। ये तस्वीरों को क्या मुझे क्या झूठ बोल रहा है? तुम में फंसाने के चक्कर में कराची से लाके जो सच है- एक इतनी अच्छी खातून को क्यों फंसा दिया? सर मेरी बात सुनो, जो सच है मैं आपको वो बताऊँ। वो तो बताओ ना, सच बताओ। यही बता रही हूँ बोलो। सर कि मुझे इसकी बहनों की तस्वीरों का नहीं पता। बहनों की तस्वीरें नहीं, यहाँ पे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो जिससे तुमने कत्ल किया है। यहाँ की पुलिस भी ये कह रही है, झूठ बोल रही है। काशिफ जो तुम्हारा दोस्त सर मैंने कत्ल वो नहीं भी ये किया, कह रहा मेरी है। दोस्त थी वो, मैं इसको क्यों कत्ल करूँगी? मेरी दोस्त थी, मैं इसको साथ लाई हूँ, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता अच्छा, था। कत्ल कैसे हो गई वो? अच्छा, उसने मुझे बोला कि चले मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ। मैं और सभी रिक्शे में बैठ के, वो आगे आगे बाइक पे था, ठीक है। फिर उसने हमें एक पुल के पास उतारा, मैं और सभी पुल से नीचे उतरे। फिर उसने बोला कि पैदल पैदल कच्चा सा रास्ता था, पैदल पैदल हम चलने लगे। मुझे तो उसके घर का पता था। मैंने कहा ये घर तो नहीं, इस तरफ से तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। तो उसने बोला कि आओ, मैंने घर चेंज कर दिए। मैंने कहा सबीन ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सबीन ने बोला दफ़ा करो, ये घटिया लोग हैं, कम नस्ल, भूखे नंगे लोग हैं, तो ऐसी जगह पे रहते उल्फत, चलो। मतलब मासूम बच्ची सी एक सबीन और काशिफ के जाल में फंसी हुई कि किधर लेके जा रहे हैं, और तुम परेशान हो रही हो, और सबीन आगे से बता रही है कि घटिया लोग इधर ही रहते हैं। यही कहने का मकसद तो यही। सबीन अच्छा जी, चलो फिर उसकी लैंग्वेज ऐसी थी। आगे क्या हुआ?
बस आगे हम लोग चले गए। जैसे उसने बोला कि दीवार के पीछे मेरा घर है, हम लोग मुड़े तो उसने पीछे सबीन ने मेरा दुपट्टा खींचा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो काशिफ ने उसके गले में दुपट्टा डाला हुआ था। अच्छा। मैंने कहा काशिफ नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना। हाँ। तो उसने बोला नहीं आप पीछे हट जाओ, बीच में मत आना। मैंने कहा नहीं काशिफ, सबीन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो काशिफ ने बोला नहीं, अगर आप भी इसको छोड़ देंगे ना, ये हम दोनों के लिए ज़ाब बन जाएगी, आप यहाँ से चली जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा। तो चली गई? मैं बाहर गई, मैंने बाहर जाके शोर शराबा किया। किधर बाहर? उसी जाम पर उसको मारा, उससे बाहर प्लाट से। अच्छा। फिर शोर शराबा किया मैंने, तो कोई भी नहीं था सर, ना हाँ। बंदा ना बंदे के साथ, बहुत सुनसान जगह थी। तो फिर मैंने देखा नीचे, मेरे पाँव नीचे पत्थर सा आया, मैंने वो उठा के तो मैंने काशिफ को मारा, जो काशिफ के हाथ पे लगा। अच्छा। ठीक है, काशिफ ने बोला ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, ठीक है, नहीं तो तुम भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगी। अच्छा। जो हक सच की बात है वो करूँगी। हाँ, हक तो सच्ची हो, वैसे हक वाली हो, ठीक है। फिर आगे हक क्या किया? तो फिर मैं उठ के बाहर निकल गई। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसने सबीन के साथ क्या किया। अच्छा, सबीन बेचारी को मार दिया। अब पता लग गया क्या किया कि अभी भी नहीं पता? वो तो मुझे पता चल गया, मैंने तस्वीरें देखी। देखिए क्या हुआ, कत्ल हो गई सबीन। इतनी मासूम खतून को ये नहीं पता लगा। अच्छा, उसके बाद उसने कत्ल कर दिया, मासूम औरत बाहर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, फिर चली गई मैं। कराची चली गई सीधी प्लॉट के बाहर से? नहीं, फिर इसके घर गई हूँ। अच्छा, घर चली गई कातिल के? वो कैसे चली गई कातिल के घर? क्या करती, फिर मैं अकेली थी। अकेली थी, फोन करती किसी को कि वो कातिल ने मेरी सहेली मार दी है, वो मुझे भी मार मुझे देता। आके बचाओ। अच्छा चलो, घर चली गई, फिर क्या कितनी देर घर रही? घर में गई, घर जाके मैं उसके जाके सो गई। सो गई घर जाके? सहेली कत्ल हो गई है और तुम आप सो गई हो? हाँ तो सर मैं तो मासूमियत की इंतहा नहीं है ये? ज़हनी टेंशन में थी मैं तो। ज़हनी टेंशन में थी, नींद आ गई। ज़हनी टेंशन में तो नींद नहीं आती। चलो नींद आ गई, ठीक है। सर मेरा बीपी डाउन होता है। अच्छा, बीपी डाउन हो गया, नींद आ गई, फिर कब उठी? सुबह सवेरे सवेरे उठ गई, फिर नाश्ता किया? तो नाश्ता वगैरह नहीं किया। नाश्ता नहीं किया। फिर हम लोग, मैं होटल चली गई, वहाँ से अच्छा। सामान वगैरह उठाया। किसके साथ होटल गई? काशिफ के साथ। हाँ, काशिफ के साथ गई। किस पे बैठ के? बाइक पे। बाइक पे, ठीक है। फिर तो वहाँ से सामान उठाया। हाँ। सामान उठा के फिर मैं वहाँ से रवाना होगी। कौन रवाना करके आया? कोई भी नहीं करके, मैं खुद ही गई थी। कहाँ से? इस होटल से। गुलबर्ग से? नाम तो नहीं आता, होटल था कोई। अच्छा, मतलब इस्लामाबाद भी जाती हो, बनी गाला भी जाती हो, पिंडी में जब वो उसको दाखिल करवाते हैं सबीन को, वहाँ पे भी कराची से चली जाती हो जी। और नाम नहीं पता, दाता दरबार भी पहुँच जाती हो, गुलबर्ग में कमरा भी ले लेके लेती जाती हो। थी मुझे। सबीन लेके जाती थी। सबीन मतलब गलत औरत थी जो कत्ल हो गई? नहीं, गलत नहीं थी। हाँ, अच्छी औरत थी। गलत नहीं कह सकता है। तो गलती हुई जैसे आप बता रही हो, आप तो मासूम हो, आपको घूमती तो फिरती रहती थी, उसने बर्बाद कर दिया। घूमती फिरती रहती थी। हाँ। ठीक है, गलती मैंने उसमें कोई नहीं देखी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा, गलती नहीं देखी? नहीं, फिर क्या देखा उसमें? कुछ भी नहीं देखा, जो सच है वो आपको बता दिया। ये सच है सब कुछ? बस यही सच है। फिर घर चली गई। जी। रास्ते में अब उसका खौफ खत्म हो गया है कातिल का, कि तुम्हें ना मार दे, जिसके घर में रात को सोई हो, जिसके साथ सोती रही हो, और सुबह उठ के सामान लेके फिर घर को रवाना हुई है। उसका खौफ खत्म हो गया ट्रेन में बैठने के बाद। चलो, लाहौर तक नहीं खत्म हुआ, लाहौर से आगे चली गई ये ट्रेन, अब कराची के रास्ते में है। फोन तुम्हारे पास था? बिल्कुल था। फोन करना था कि मेरी सहेली को कत्ल कर दिया इसने। फिर क्या होता सर, यही सब कुछ होता जो भी हो रहा है। अच्छा, यही होना था? जी, इसी डर से मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया? इतनी मासूमियत कैसे आ गई इतनी उम्र में? हूँ ही मासूम। हूँ ही मासूम, माशाल्लाह। तो अभी आपके आशिक को आपके सामने बुलाते हैं और उससे ये बातें पूछते हैं। नाजरीन, जो इस केस की मरकजी मुलजमा है, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक और एतराफ़ जुर्म भी कर चुकी है इस कत्ल की वारदात का, लेकिन जब उससे ये सवालात पूछे जा रहे थे तो उसका कहना था कि वो मासूम है और वो बचपन से ही मासूम है और उसे फंसा दिया गया है, इसीलिए कोई भी मुलजिम ऐसा ना हो जो जिसे ज़्यादती की जाए, जिसे फंसाया जाए, इसीलिए दोबारा उसका हमराई मुलजिम जो उसका आशना पुलिस बताती है और वो भी ये कहती है कि वो उसका दोस्त है, तो उसी की ज़ुबानी जान लेते हैं कि ये सब कुछ इसका, काशिफ का ही किया धरा है और इस मासूम खातून को क्या फंसाया जा रहा है, हकाइक हैं क्या, ये अब काशिफ की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं और उसकी मौजूदगी में सुनाते हैं। हाँ भी काशिफ, ये कहती है कि ना इसका कत्ल की वारदात में कोई हाथ है,
ये तुम्हें रोकती भी रही, ये सैर करने के लिए दोनों खवातीन बेचारी आई हुई थी ठीक और है। अक्सर आती होती थी, ठीक और है। तुमने ज्यादती की है और उस औरत को कत्ल कर दिया है, ये सामने खड़ी है। ठीक है सर, अगर ये ऐसा सब कुछ कह रही हैं, ठीक है, अगर इनका ये मकसद नहीं था मुझसे ये काम करवाने का, तो ये सबसे पहली बात ये है कि वहाँ से यहाँ क्यों ले गई थी उसे। हम्म ठीक है। वो कहती है सैर करने आए थे, वो नहीं। तो अक्सर सैर व तफरी करने के लिए आते हैं। वो फर्स्ट टाइम लाहौर में आई, आप उसका बायोडाटा चेक करें। अच्छा, पहली बार आई है जी, सिर्फ पहली लाहौर बार। में। जी, ये और भी इनके मुंह कहने की वो जरूरत उसको उसकी दोस्ती जो वो कहती है कि सबीन के तुम पहले दोस्त थे और सबीन की वजह से इसके साथ दोस्ती हुई है, सबीन ने दोस्ती करवाई ये गलत तुम्हारी। बात है। ये सबसे पहली गलत बात तो यही है, क्योंकि इनकी तरफ से मैं उनको, वो तब भी मुझे जानती थी जब ये मुझे जानती थी। ये पहले से जानती है। जी, पहले यही मेरे पास, मतलब कि इनके साथ ही मेरी दोस्ती हुई, उसके बाद मैं उससे जानना शुरू हुआ कि वो इनके साथ चलो कैसे बाकी भी रहती है। सवाल पूछता हूँ, अभी इनके जवाब दो। मेरा हाँ, ये नंबर क्या आपको कह किसने रही दिया था? है? मेरा नंबर सभी ने दिया था इसको। हैं? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि इनके पास, इनके ग्रुप में से मैं इनको, मतलब कि इनका ग्रुप छोड़ के चला गया था। ठीक है, ग्रुप के दौरान ही मैं इनका ग्रुप छोड़ के लीव करके चला गया, मैं अपने रूम में ही बैठा हुआ था, मतलब ये ज़िद के साथ आई थी और ज़िद के साथ ही। और तुमने क्यों मुझसे कत्ल किया? ये तो बेचारी उसे छुड़वाती रही, कहती है मैंने इसे कहा कि काशिफ ना करो, ऐसे गलत काम ना करो, ठीक है। फिर भी आपने उससे कत्ल कर दिया। फिर वो है। कहती है पत्थर मैंने इस तुम्हें मारा है, तुम्हारे हाथ पे जख्मी करने के लिए, और ठीक तुमने है। फिर धमकी दी है कि तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। नहीं, ये सब गलत है। अगर ये हलफ पे हाथ रख दे तो मैं सज़ाए मौत खुद अपनी कबूल कर लूँ, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं और मेरे भी छोटे छोटे बहन भाई हैं। ये हलफ पे सबके सामने हाथ रख दे और इसका हस्बैंड रख दे, अगर इनका प्लान नहीं था ये सब कुछ मुझसे करवाने का, तो मैं अपनी सज़ाए मौत खुद कबूल करता हूँ। हाँ भाई, इतनी बड़ी बात कर दी, इसके बाद तो बात ही खत्म है, अब तो मासूमियत। ठीक है सर, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। अच्छा, हलफ अगर ये ऐसा कह रहे तो। हलफ उठाने को ना तैयार? तो मेरे शोहर को किसी चीज़ का पता है, हाँ। उनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है ना। हाँ। ठीक है, और ना हलफ की बात आ रही है, इसके हस्बैंड भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगी, इसकी 3 बहनें भी उठाएंगी, इसकी फ्रेंड भी उठाएंगी, जिनको इस सारी मालूमात का पता था, जिसके साथ ये इसने सारी पूरी प्लानिंग की। ठीक है, मेरे भी छोटे छोटे बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, सबसे कमाने वाला मैं। ठीक है, अगर मैं अपनी मौत कबूल कर रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि इनका प्लान है, मैं इसी वजह से ये सब कुछ कह रहा हूँ। ये सब अपनी तरफ से आके हलफ दें, मैं खुद अपनी सज़ाए मौत कबूल करता हूँ। हाँ भाई, बताओ क्या ठीक बात है। करनी है? ठीक ठूक नहीं है, बताओ। यही दी गई थी, ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर अपनी फैमिली को खुद ही संभालोगे, हमारा कुछ नहीं होगा उसके बाद। तुम मतलब जो कुछ भी होगा, इन्होंने मुझे बताया कि मेरा भांजा भी है, जो मतलब कि वो दूसरा है कि डेंजरस टाइप है, मतलब जो हमारी कत्ल फैमिली करता है? जी, इसी तरह से। अच्छा जी, सब खानदानी, मतलब नहीं, कातलों हमारे का खानदान में कोई कत्ल नहीं करता, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्यों फंसा दिया है? पुलिस भी आपको फंसा रही है, क्या दुश्मनी है इनके साथ, इसके इन्होंने साथ, मुझे ये कहा इसके था- साथ? इन्होंने मुझे ये कहा था, ठीक है, अगर कुछ भी आप पे आएगा तो सबसे पहले आपने मुझे इन्फॉर्म करनी है। अगर आप पुलिस के हाथ भी जाते हो तो सब कुछ मैं कबूल करूँगी, मेरी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ जो कुछ भी होगा तो मैं खुद ही तुम्हें बाहर निकलवाऊंगी, तुम्हारे बहन भाइयों की सबकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँ। काम करने के बाद इन्होंने ये कुछ। सिर्फ दोस्त की हद तक ही थे तुम? सिर्फ दोस्त थे इसके जी। के मतलब एक बार मिला भी हूँ, बॉयफ्रेंड है जी, ना? एक बार मिला भी। हाँ, तुम तो कह रही हो दोस्त है। सर, आपको उसकी बात पे यकीन है, मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं नहीं, आपकी बातों पे तो मासूमियत पे यकीन कर रहे हैं तब तक, इसीलिए तो इसे लेके आए हैं बाहर दोबारा। क्या बातें हैं फिर? असली बातें बताओ ना, वो कत्ल कैसे हुआ? कत्ल इसके सामने बताओ कि कत्ल कैसे हुआ, जरा ऐसे हुआ, दोबारा, सर। दोबारा बताओ वही बात जो मुझे बताइए। काशिफ क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 8 बहन भाई हैं। खुदा का खौफ करो, आपको पता है ना, आपको इसी चीज़ का पता था कि मेरा कोई नहीं पीछे आएगा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इस वजह से मुझे ये सब कुछ करवाया आपने। सब कुछ है आपके, कौन संभाला? आपके हस्बैंड की इतनी अच्छी खासी सैलरी है, मैं तो खुद का घर चलाने वाला था, आपको क्या है? मुझसे किस चीज़ का बदला लिया, बता सकती हैं? मुझसे किस चीज़ का बदला लिया? नहीं तो और किसने कहा? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी, बता सकती हैं? और ईंट मारी है इसने? जी, पत्थर बिल्कुल इन्होंने मारा। हाँ भाई, बताओ। नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैं कसम खाती हूँ। मैंने बात, अब ये ऐसा कुछ कह रही हैं, ठीक है, ज़िंदगी हर किसी को अपनी प्यारी है और मुझे भी अपने बहन भाइयों की सबकी है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ अगर ये यहाँ से भी मुकर रही है तो इनका मेडिकल करवा लीजिए, अगर ये कह रही हैं इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ से मैं बच भी गया तो इनकी फैमिली मुझे नहीं रहने देगी। मरना ही है ना, उसके मेरी बाद भी तो फैमिली मरना क्या है ना। करेगी? मेरी फैमिली क्या करेगी? ये झूठ है सब, मेरी फैमिली का। क्या क्या झूठ और क्यों फंसाया जा रहा है? मेरी इसके फैमिली- पीछे साजिश बेनकाब कर दो आप, साजिश बेनकाब करो कि असल में साजिश है क्या कि इतना ज्यादा मतलब फंसाया जा अच्छा, रहा है? मैं सब लोग मिलके आपके खिलाफ हो गए। अच्छा मैं क्या इतनी मासूम नहीं, आप खातून लोग क्या के चाहते हैं कि मैं इकबाल जुर्म करूं? नहीं नहीं, इकबाल जुर्म क्यों करना है? मैंने कर वो तो तो लिया। किया ही नहीं है। मैंने कर लिया ना, क्या इकबाल जुर्म किया? कि ये मेरी गलती है कि मैं इसके साथ थी, अच्छा, और बस।
क्या साथ थी? आपने कहा कि हम तो सैर करने आए थे, ये जबरदस्ती ले गया, ये उसी का वाकिफ है, सबीन का ही वाकिफ है। सर मैं ये और चाहती थी सबीन ये सब कुछ इस वजह से कर रही हैं क्योंकि ये बच जाए, इनकी फैमिली बच जाए, बीच में मैं रगड़ा जाऊं और मेरी फैमिली रगड़ी जाए, और कुछ भी नहीं है इनको। सिर्फ इसी चीज़ का, सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर कर रही हैं, अपने बच्चों की खातिर कर रही हैं। इनको ना तो मेरी माँ बाप रह गए, ना मेरे छोटे बहन भाई रह गए। मैंने इस वजह से ये जुर्म कबूल किया है। अगर इनके हस्बैंड को पता नहीं है इस चीज़ का, अगर इनकी बहनों को पता नहीं है, इनकी बहन का नाम नाजिश है, ठीक है, अगर उसको पता नहीं है, मारने के बाद पता नहीं है, मारने से पहले का पता नहीं है, इनकी बहन दूसरी है, बिनिश है उसका नाम, ठीक है, अगर उसको इन चीज़ों का नहीं पता, वो सब आके हलफ दे दें, जो सजाए हुकूमत। नहीं सर किसी को नहीं पता, कुरान पाक अस्तगफिरुल्लाह, ये किस चीज़ों को आप बीच में ये ले झूठ आएंगे? बोल देखें कल ये कल झूठ मेरे बोल रहा है। सामने कल बकायदा झूठ बोल रहे हैं। और मैंने अभी तक कोई पछतावा चलो नहीं, ठीक है। सहेली बनाई, कत्ल की मेरी वारदात सहेली की, थी, सब मैं- कुछ किया, मैं उसको अपने पास और रखती थी। जरा शर्मिंदगी नहीं, इतना सर मैं उसको कॉन्फिडेंस अपने किस पास चीज मैं का? उसको अपने पास रखती थी, मेरी दोस्त थी। हाँ, तो वो मैं- रोका भी था ना इससे जब ये लेके गया वहाँ पे, कि उसे भी कहा सबीन को कि सर ये मैं कहाँ पे लेके 1000 जा रहा दफ़ा है? मैंने बोला है कि मैंने इसको- सबीन को कहा। प्लानिंग ना होती, अगर ये सब कुछ ना होता तो ये यहाँ से पूछ सकती थी कि हमें किधर लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो और कहाँ लेके जा रहे हो। हालांकि इनको फर्स्ट टाइम इनको मेरे घर का पता है, मैंने एक बार गुजर भी जाए ना तो रास्ता याद रहता है, हाँ, ठीक है। अगर ये सब कुछ नहीं था, वहाँ से ये नहीं लेके आई थी, किस मकसद के लिए लेके आई थी? मैंने पूछा था दोपहर के टाइम अगर इनकी प्लानिंग नहीं थी, अपने हस्बैंड के साथ जिद करके उसे लाने की वजह क्या थी? अगर ये सब कुछ कह रही है ना तो उसे बुलाएं, उससे भी कटहरे में खड़ा करें, इसके हस्बैंड को लाएं, सामने लाएं, वो मेरे सामने आके उससे भी बात हुई है सामने लाके मुझे, हाँ बात हुई है मेरे सामने ही, उसके सामने जिद करके लेके आई है उससे। उससे लेके जी। वो तो कह रहे वो जिद कर रही थी कि कौन मैंने जिद कर? जाना है। सबीन नहीं, बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। नहीं मैं और सबीन दोनों मैंने जुर्म कबूल क्या किया, करने आई अपनी थी? जिंदगी से कुछ नहीं है। अच्छा, लाहौर क्या करने आई थी? हम लोग घूमने फिरने आए थे। कि कौन रहता है यहाँ पे आपका? सर हम लोग घूमने फिरने आए थे, दाता दरबार आए थे। तो इससे कहाँ से इन्वॉल्व कर लिया बीच में? ये तो जवाब दें आप। हाँ, सबीन ने बुलाया इससे कि तुमने बुलाया, ये बताओ। हम दोनों ने बुलाया था। हम दोनों ने? अच्छा, दोनों का फोन आया? नहीं। दोनों का फोन आया था भाई? नहीं। हाँ, देखा, पूछे आप बताइए, अच्छा, मुझसे फिर- ना बात करें आप। फ़ोन तो मैंने किया था, मैंने बुलाया था। अच्छा, बुलाया फिर? हाँ जी, तो तो सबीन के सबीन- साथ पहले ही इसकी क्यों सर वो सबीन इसे गालियां देती इन थी? दोनों के आपस में थोड़ी लड़ाई हो गई थी क्यों? सर। और सबीन की वजह से ही मिला ये? जी हमारी इमो पे फ्रेंडशिप हुई थी। सबीन ने दिया था ये तुम्हें? व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया था सबीन ने इसको। बहुत गलत अच्छा। बात है, नंबर इन्होंने खुद ही मुझे दिया था। अच्छा, फिर बुला लिया जिद इसे? के साथ आई थी और ये बड़ी जिद के साथ आई, माशाल्लाह बड़ी जिद की मालिक हैं ये, और जिद के साथ इनको फर्स्ट टाइम भी रोका गया था कि ये काम आप ना करें, तो फर्स्ट टाइम भी इनकी जिद्दी थी, और इनका खानदान भी यही है, सब कुछ के जिद की मालिक ही है, अपनी मर्जी की मालिक है, जो कुछ भी करे। कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा, सर- इतना कॉन्फिडेंस, इतना झूठ, क्या करना है जिंदगी में? आगे ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी? नहीं इतना- सर, क्यों? इतनी मुझे- खतरनाक मुलजमा, कत्ल करने के बाद भी जरा कोई पछतावा नहीं, और सब कुछ झूठ पे झूठ बोली सर चली जा रही मैं है। झूठ बोल रही, मैं खुदा की कसम कोई झूठ फिर नहीं। क्या दुश्मनी है इन इसकी क्या है तुम्हारे साथ? ये क्यों फंसा रहा है? पुलिस क्यों ऐसा कह रही है? ये क्यों साजिश क्यों कर रहे हैं खिलाफ, एक मासूम खातून के खिलाफ क्यों साजिश की जा रही है? वो बताएं मुझे। सर मैं चले कत्ल की धमकी भी दी थी तुमने जब सबीन को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद ये इसने वहां पे जाके शोर मचाया, और शोर मचाने के बाद तुमने कहा कि चुप कर जो, नहीं तो तुम्हें भी कत्ल कर। मेरी बात सुने, अगर शोर मचाया तो अलहदा सब फैक्ट्री है, फिर ठीक है। इसको घर भी लेके गए अपने? जी, अगर मैंने इसको धमकाया होता तो यहाँ मेरे साथ घर पे क्या लेने जाती? घर भी गए हो, फिर होटल भी लेके होटल गए? भी गया, वो सामान लेने गई है, मेरे साथ रही। अगर ये ऐसा कुछ नहीं था तो ये सब कुछ बता भी सकती थी, बाहर आके चिल्ला उसे भी तो सकती ये थी। भी नहीं पता कि होटल कहाँ पे था, वो तो इतनी मासूम खातून है। माशाल्लाह, उसे पता है जिन्होंने बुक गुलबर्ग। करवाया उसे ये नहीं पता था कि होटल का रूम कहाँ पे है। तो फिर बैठी कहाँ से? रेलवे स्टेशन कौन छोड़ने गया था? रेलवे स्टेशन ही नियाजी अड्डे। मैं मतलब कि ये होटल से मुझसे फ़रार हो गई थी फर्स्ट टाइम, जब काम हो गया उसके बाद ये फ़रार हो गई थी। मुझे नाश्ता लेने के लिए भेजा, पूछे इनसे, ठीक है, जाके आप रिकॉर्डिंग करवाएं, कैमरे की वहाँ से चेक करें, और उस बंदे से जो काउंटर पे बैठा हुआ है, सुहेल नाम है उसका, उससे जाके पूछे, इन्फॉर्मेशन ले। मैं नाश्ता लेने के लिए बाहर जाता हूँ, तकरीबन 1.25 घंटा रश का टाइम होता है, मैं नाश्ता लेके बाहर आता हूँ, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रूम चेकआउट हो चुका है, वो चली गई। पूछे इनसे। बताएं। नहीं सर ये लेट हो गया था, अगर वाकई में इनको चली डर गई था, हैं? अगर इनको थी। ये लेट हो गया था, मैं वाकई चली गई थी। अच्छा, बाकी सब कुछ झूठ ही है? नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो बात सही थी वो बताइए। क्या सच क्या है? फिर बता दो एक बार कि इसने कत्ल किया सबीन को। सबीन का यही दोस्त है, सबीन सर- के साथ दोस्ती इसी ने मैं उसने अपनी- करवाई। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं इसको साथ लेके आई। क्या गलती है? सिर्फ साथ लेके आई हो, साथ बस लेके- ये गलती है, जी। और कोई गलत काम नहीं किया? तो फिर क्यों पकड़ लिया पुलिस ने? सर पानी दे दे। मैं मानती हूँ मैंने प्लानिंग की थी, बस मैं लेके आई थी प्लानिंग की तरह उसको मरवाने के लिए, प्रेशर की वजह से नहीं मान रही। हाँ, ये किधर चली गई हैं आप नीचे?
सर, क्या चक्कर- हुआ? वो तो चक्कर आ कत्ल रहे कर, उससे तो मौत के घाट मेरा उतार BP दिया। डाउन होता है सर, बस। नाजरीन देखा कि मुलजिमा अब कह रही है कि उसका बीपी जो है वो डाउन हो चुका है। दूसरे मुलजिम की भी गुफ्तगू सुनाई, आमने सामने भी किया गया। इस केस के असल हकाइक हैं क्या, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि असल में ये हुआ क्या और कौन कितना सच और कितना झूठ बोल रहा। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादबाग गुलाम ज़मीर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अंधे कत्ल की एक वारदात को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया। एक सहेली ही इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस थी, उसने अपने आशना की मदद से किस तरह से कत्ल किया वो तफसीलात गुलाम ज़मीर साहब की ज़ुबानी ही आपको सुनाते हैं। गुलाम ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया। जब हम इस बारे में मुल्जिमा से पूछ रहे थे, वो कहती है कि सिर्फ मेरे से ये गलती हुई है कि मैं उसे लाहौर सैर करने के लिए लाई, और दूसरा वो कहती है कि जो मुल्जिम काशिफ है उसके साथ सबीन की दोस्ती थी और ताल्लुकात थे, उसने इसके ताल्लुकात बनवाए और इनका आपस में मैटर था, इसे नहीं कुछ पता था। और ये जो खातून है इसे ये सब कुछ नहीं पता था कि ये कत्ल होगा, और काशिफ ने खुद ही ये कत्ल की वारदात कर दी। इसने शोर भी मचाया, वहाँ से लोगों को बुलाने की कोशिश की, फिर काशिफ ने इसे कत्ल की धमकियाँ दी। ये क्या हक़ाइक़ में कितना सच और कितना झूठ है इस सारी बात? देखिए, ये जो मुल्ज़िमा है ना, वो अब आपको पता है कोई भी कत्ल करके मानता नहीं है। वो अपना जुर्म छुपाना चाह रही है कि शायद मुझे किसी ना किसी तरह रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो सबूत है, सबसे पहले तो अगर हम उसका CDR एनालिसिस देखें तो काशिफ का और सबीन सहर का आपस में फ़ोन पे राब्ता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, अगर वो दोनों फ्रेंड होते या उन दोनों का अफेयर होता, कोई तल्लक होता, तो सबीन की और काशिफ की बात होती, उनका एक दूसरे से राब्ता निकलता, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्फत और सबीन कराची से लाहौर आते हैं। सही। अगर उसने मर्डर कर दिया और मौके पे उसने चीखो पुकार की, जब वो यहाँ से गई तो उसने जब यहाँ से काशिफ से जुदा, काशिफ के घर में है, रही भी काशिफ के घर, रात रात को सोई उसके घर, अगले दिन होटल उसके साथ गई, वहाँ से कराची चली गई। उसने ना लाहौर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी फ्रेंड को मर्डर कर दिया। डर गई थी, काशिफ कहता था मैं मार दूंगा, कत्ल कर। काशिफ कोई गैंगस्टर है? ऐसा गैंगस्टर है? कोई गैंगस्टर नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। इसका दोस्त था, अगर इसने चीखो पुकार की थी तो नाजरीन, बुरी सोबत का बुरा अंजाम। अक्सर औकात बुरी सोबत इंसान से उसकी जिंदगी छीनकर उसे मौत की वादियों में ले जाती है, जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि एक सहेली ने अपनी ही सहेली को आशना की मदद से मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा सोशल मीडिया पर दोस्तियां करने की बजाय अपने घर में वक्त दीजिए, ताकि इस तरह के भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।